Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and merciful. Welcome to the Pacific Group of Colleges, Multan campus. Assalamu alaikum, dear students. This is our online lecture number 12, and in this lecture, we are going to study about the subject Introduction to Business BCom Part 1. Okay, let's start our today's lecture with the revision of our previous lecture, and then we will discuss about today's lecture. In the previous lecture, we discussed about types of business. हमने types of business को सबसे पहले अपने previous lecture में डिस्कस किया था. Types of business तीन तरह की हैं. Number 1 sole proprietorship, number 2 partnership, and number 3 is the corporation. जिसमें से हमने अपनी सबसे पहली टाइप को डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज द सोल प्रोप्राइटरशिप. अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ऑनर आपका उस बिजनेस को रन भी कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और उसको कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ वन पर्सन, सिंगल पर्सन, तो वो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा. इसी तरह से हमने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के, कि एक पर्सन अगर अपने बिजनेस को रन कर रहा है तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. इसी तरह से हम अपने आज के लेक्चर में सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पार्टनरशिप. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप को लेकर. Okay, now partnerships. One way to minimize the disadvantages of a sole proprietorship and maximize its advantages is to have more than one owner. कि आपके पास एक ही तरीका है कि अपने डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज करना है सोल प्रोप्राइटरशिप में और उनके एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज करना है. So you need to have more than one owner. The law defines a partnership as an association of two or more persons who carry on as co-owner of a business for profit. ये पार्टनरशिप को इस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं, एक ऐसी एसोसिएशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन के दो या दो लोगों से ज्यादा उनके दरमियान एक ऐसी एसोसिएशन जिससे वो एज अ को ओनर काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. Now the partnerships are the least used form of the business organization. They are typically larger in size than the sole proprietorship but smaller than the corporation. कि ये larger in size है sole proprietorship से, लेकिन smaller है corporation. तो ये आपकी partnership कहलाएगी. Okay, now we have some types of partnership. There are two basic types of partnership. Number 1, general partnership, and number 2, limited partnership. Okay, what is the general partnership? अब general partnership क्या है? A general partnership involves a complete sharing in the management of the business. कि आपकी general partnership क्या है? आपकी complete sharing है आपके business के management को लेके. Each partner has unlimited liability for the debts of the business. Professionals such as lawyers, accountants, and the architects often form general partnerships. Okay, now the second type is unlimited partnership. A limited partnership has at least one general partner who assumes the unlimited liability, and at least one limited partner whose liability is limited to his or her investment in the business. क्या आपका limited partnership क्या है? जिसमें at least वन आपके पास जनरल पार्टनर है जिसके पास आप एज्यूम कर रहे हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और एटलीस्ट वन लिमिटेड पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी या उसकी इन्वेस्टमेंट को लेके उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है आपके बिजनेस में. सो लिमिटेड पार्टनरशिप एग्जिस्ट फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. आपकी जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट करती है रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लेके. द जनरल पार्टनर्स एक्सेप्ट द रिस्क. Limited partner do not participate in the management of the business. अब जो जनरल पार्टनर थे वो आपकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वो आपकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आपके बिजनेस को लेके. Usually the general partner receives a large share of the profits after the limited partner's payment. कि जो जनरल पार्टनर्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं लार्जर अमाउंट ऑफ द शेयर्स. ओके, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो जनरल पार्टनर्स हैं वो लार्जर शेयर्स के थ्रू
आपके प्रॉफिट को रिसीव कर रहे हैं एज कंपेयर टू द लिमिटेड पार्टनर्स आफ्टर द लिमिटेड पार्टनर्स पेमेंट, कि लिमिटेड पार्टनर्स की पेमेंट के बाद जो आपके शेयर्स की अमाउंट है उसको रिसीव कर रहे हैं. Examples are oil drilling partnerships and the real estate partnership. Okay, now the articles of partnership. अब articles of partnership क्या है? Articles of partnership are legal documents. आपके legal documents हैं. They set up the basic agreement between the partners. ये आपका basic agreement set कर रहा है आपके partners के दरमियान. Most government requires the articles of partnership, but even if they are not required, it is good for partners to write them up. Okay, now here we have some of the advantages of partnership. The advantages of partnerships are ease of organization, availability of capital and credit, combined knowledge and skill, decision making and the regulatory controls. Okay, one by one इनको discuss करते हैं. Advantages of partnership. Number one, ease of organization. कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्ट है उसको इजीली ले सकते हैं, इजी आप उसका स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप रिक्वायर्स लिटिल मोर देन ड्राइंग्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, कि कुछ ही ड्राइंग्स, आपको कुछ ही इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है अपने पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए. नो लीगल फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, कि कोई लीगल फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे. पार्टनरशिप्स हैज टू चूज अ नेम, सिर्फ पार्टनरशिप्स को नेम ही अपना चूज करना है अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए. Now the second advantage is availability of capital and credit. When a business has several partners, it has the benefit of a combination of talents and skills and the financial resources. अब जब यहाँ पे हमारे पास सेवरल पार्टनर्स होंगे, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उनके पास ये बेनिफिट्स होगा कि वहाँ पे डिफरेंट लोग, टैलेंटेड लोग भी हैं, डिफरेंट लोगों की स्किल्स को यूज कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनसे जो है वो ले सकते हैं. तो यहाँ बिजनेस के पास एक बेनिफिट है कि उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास हैं क्योंकि सेवरल पार्टनर्स हैं उनकी इस पार्टनरशिप में. नाउ द पार्टनरशिप टेंड्स टू बी लार्जर देन सोल प्रोप्राइटरशिप. अब जो पार्टनरशिप है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप से लार्जर है. दे हैव देयरफॉर हैव ग्रेटर अर्निंग पावर. इसी तरह से जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, स्किल्स और टैलेंटेड पीपल ज्यादा होंगे, तो आपका जो अर्निंग पावर है वो भी ग्रेटर हो. दे हैव बेटर क्रेडिट रेटिंग एज वेल, और इसी तरह से उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी better. Okay, now the third advantage of the partnership is combined knowledge and skills. Now the partners in the most successful partnership acknowledge each other talents. अब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो उनके पास नॉलेज लेवल भी ज्यादा है, उनके पास स्किल्स भी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि वो सक्सेसफुल पार्टनरशिप हो जाएगी उनकी. They use the expertise such as marketing, production, accounting और सर्विस. कि मे बी एक पार्टनर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज मार्केटिंग में यूज कर सकता है, दूसरा प्रोडक्शन में यूज कर सकता है, इसी तरह से कोई एक्सपर्ट हो सकता है अकाउंट्स को हैंडल करने में और कोई सर्विसेज देने में एक्सपर्ट हो सकता है. तो ये एक कॉम्बिनेशन है आपके नॉलेज एंड स्किल्स का, और ये आपका एडवांटेज है पार्टनरशिप. The diversity of skills in a partnership make it possible for the business to be run by a management team of special. Now the fourth one is decision making. This is the fourth advantage of partnership, and that is decision making. Small partnerships can react more quickly to change in the business environment. अब जो small partnership में suppose दो लोग हैं या चार लोग हैं आपकी इस partnership में, तो वहां पे आपके जो बिजनेस को लेके चेंजेस हैं, आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट को लेके, वो क्विकली हो सकते हैं. The large partnerships and corporations do not have such flexibility. अब जो large partnerships हैं और corporations है, वहां पे आपकी ये flexibility ज्यादा नहीं होती. Such fast reactions are possible because the partners are involved in day-to-day operations. कि इस तरह की जो फास्ट रिएक्शंस हैं वो इस तरह से पॉसिबल होते हैं क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं आपके साथ. तो इस तरह से आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है आपकी, मोर क्विकली डिसीजंस आपके लिए जाते हैं. तो ये भी आपका एक एडवांटेज है पार्टनरशिप. ओके, नाउ वी हैव another advantage, and that is regulatory controls. Like a sole proprietorship,
A partnership has fewer regulatory controls affecting its activities than does a corporation. अब जिस तरह से आप सोल प्रोप्राइटरशिप में आप कंट्रोल करते हैं अपने बिजनेस को, इसी तरह से पार्टनरशिप में भी आप फ्यूअर रेगुलेटरी कंट्रोल्स कर रहे हैं अपने, जो कि आपके इफेक्ट कर रही है बिजनेस की एक्टिविटीज को लेके, अदर देन अ corporation. A partnership does not have to file public financial statements with the Securities and Exchange Commission. अब पार्टनरशिप में आपको ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक में डिस्कस करें या पब्लिक के सामने लेके आए, पब्लिक में जाके फाइल करें, तो ये विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इस तरह से आप अपनी पार्टनरशिप में भी रेगुलेटरी कंट्रोल्स कर सकोगे। तो ये थे हमारे पास एडवांटेजेस। अब हम जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप की तरफ कि हमारे डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप को लेके क्या है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी, द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स एंड द टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वन बाय वन इनके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। Unlimited liability. In the journal partnerships, the journal partners have unlimited liability for the debts. Such unlimited liability can be a disadvantage to one partner. The disadvantage is eliminated for the limited partners. क्या आपकी ये जो disadvantage है उसको eliminate किया जा सकता है limited partner के लिए। कि अब आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, आपके लिए ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर्स के पास डेट को पे करने की अमाउंट नहीं है तो उनको अपने पर्सनल एसेट्स यूज करने पड़ेंगे अपनी इस लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का, जो कि है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, नाउ द अनदर वन डिसएडवांटेज इज बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी। अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पार्टनर्स पे इक्वली आती है। ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एक्शन ऑफ ऑल अदर्स, के हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है आपके बिजनेस एक्शंस को लेकर। पार्टनर्स में कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर्स, के पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे पार्टनर के अप्रूवल के बगैर ही। A bad decisions by one partner may put the other partner personal resources in danger. अब क्या होता है कि किसी एक पार्टनर के डिसीजन की वजह से दूसरे पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्सेज भी डेंजर में आ जाते हैं, कि उसके उस रॉन्ग डिसीजन की बेस पे दूसरे पार्टनर को भी लॉस हो रहा है। सो द पर्सनल प्रॉब्लम्स कैन एलिमिनेट वन पार्टनर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो एलिमिनेट कर सकती हैं एक पार्टनर की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, एंड वीकन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द होल पार्टनरशिप, और आपके पूरे पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर को वीक कर सकती है, पूरे पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को वीक कर सकती है। तो ये आपके पास एक डिसएडवांटेज है कि आपका बिजनेस हर पार्टनर के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ओके, नाउ द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इज लाइफ ऑफ पार्टनरशिप। अब लाइफ ऑफ पार्टनरशिप किस तरह से आपके पार्टनरशिप के लिए डिसएडवांटेज है। A partnership is terminated when a partner dies or withdraws. अब क्या होगा कि अगर कोई भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर लेता है, तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। The partners who wishes to continue the business would be at a serious disadvantage. अब ऐसा पार्टनर जो कि कंटिन्यू करना चाह रहा है अपने इस बिजनेस को, उसके लिए एक सीरियस डिसएडवांटेज हो सकता है। The business could be disturbed, financing would be reduced, and the management skills of the departing partners would be lost. तो इससे क्या हो सकता है कि आपका एक डिस्टरबेंस हो सकती है आपके बिजनेस को लेके, आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो रिड्यूस हो सकती है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो है डिपार्टमेंट की आपके पार्टनर को लेके वो आपकी लॉस, ये आपको डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आपके पार्टनर विथड्रॉ कर जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। In very large partnership example, law firm continuation of the partnership may be given in the articles of partnership. अब जो larger partnership है उससे क्या होता है, आपकी जो partnership है वो किस तरह से की जाती है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के थ्रू की जाती है, एक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू की जाती है। इन सच केसेस द डिसएडवांटेज टू द अदर पार्टनर्स इज मिनिमल। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसे केसेस में डिसएडवांटेज कम होता है दूसरे पार्टनर के, अगर आपकी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के थ्रू आपकी पार्ट, अदरवाइज दोनों पार्टनर्स को
एक ही तरह का लॉस बेयर करना पड़ेगा। Okay, now the another advantage is distribution of profits. अब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए कैसे डिसएडवांटेज हो सकती है? Profits are distributed to the partners in the proportions given in the articles of partnership. अब किस तरह के प्रोपोर्शन से, जिस तरह आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जिस चीज के अकॉर्डिंग आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, इट मीन्स कि अगर 50% एक पार्टनर्स के पास है और 50% दूसरे पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह से आपकी प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, जो कि आपके आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। दिस मे बी अ डिसएडवांटेज इफ इट इज नॉट इन रेशियो ऑफ द वर्क ऑफ ईच पार्टनर। अब ये आपके लिए डिसएडवांटेज उस सूरत में हो सकता है जब ये रेशियो आपकी उस हिसाब से ना की गई हो जिस तरह से हर पार्टनर अपना वर्क कर रहा है। इवन द परसेप्शन ऑफ एन अनफेयर प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट may cause the tension between the partners। या इस तरह जब अनफेयर प्रॉफिट शेयरिंग होती है आपके एग्रीमेंट को लेके, तो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है बिटवीन द पार्टनर्स। द अनहैप्पी पार्टनर्स कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो जो आपके जो अनहैप्पी पार्टनर्स हैं उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बिजनेस। ओके, नाउ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप इज लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स। एज विद a sole proprietorship, the sources of funds available to a partnerships are limited। अब एक हद तक आपकी पार्टनरशिप में भी आपके जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं। Moreover, the partnership shares cannot be bought and sold easily in the public market। कि जो आपके पार्टनरशिप शेयर्स हैं वो इजीली सेल और परचेज नहीं हो सकते आपकी पब्लिक मार्केट। So accumulating enough funds to operate a national business can be difficult। Partnership also may have to pay the higher interest rate on funds borrowed। तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है जो वो फंड्स बोरो करते हैं। तो ये भी इनके लिए एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप। ओके, नाउ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप इज टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप्स। Partnerships are quasi-taxable organizations। This means that the partnership do not pay taxes when submitting the partnership tax return। कि उस टाइम पे उन्हें पार्टनरशिप टैक्स पे नहीं करना पड़ता जब वो अपने पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न को पे कर रहे हैं। So the tax return simply provides the information about the profitability of the organization। कि आपकी टैक्स रिटर्न आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रही है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और आपकी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। सो द पार्टनर्स मस्ट रिपोर्ट देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न एंड पे टैक्सेस। ये थे हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया है जो कि है पार्टनरशिप। इसी के साथ साथ हमने पार्टनरशिप्स की टाइप को डिस्कस की है, जनरल पार्टनरशिप एंड द लिमिटेड पार्टनरशिप। और इसके बाद हमने आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया कि आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और उसके साथ साथ हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस किया अपने आज के लेक्चर में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।